तो ये सारी चीजें जो रहेगी वो सारी वर्टिकल फॉर्म में रहेगी और हर एक का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा. इफ यू हैव पेड टैक्स ऑल्सो, यू took the benefit of ITC also, सारी की सारी चीजें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर में कंटेन रहेगा. जब तक वो नहीं आएगा टिल देन यू कैन नॉट क्लेम. सपोज आपको आईटीसी चाहिए तो सामने वाले ने कब टैक्स भरा है उसका डिटेल रहना चाहिए, तब तक आपको आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा. आईटीसी कब मिलेगा? व्हेन फ्रॉम whom you bought the goods they have paid the tax. So what, whenever they have paid the tax, they will give you the transaction details, and that only you can utilize for claiming your input tax. Okay? Then I have asked you this kind of question which we have learned last time. ये कुछ नहीं है, ये सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने सेमेस्टर 5 में पढ़ा था. आया ना? सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, but only one column will additionally added here, which will be known as, यहाँ तक हमारा था पर्टिकुलर्स था, अभी हमने एक ऐड कर दिया. क्या उसका नॉमेनक्लेचर क्या दिया? लेजर. जो हम लोग वहां पहले आउटपुट टैक्स की बात करते थे, जो हम लोग आउटपुट टैक्स कंप्यूट करते थे, वो हमारा क्या हो जाता है? लायबिलिटी लेजर होता है. देखना इवन ऑनलाइन एज इट इज दिखेगा. अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर. ओके, जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहे थे वो आपको क्रेडिट लेजर में दिखेगा, और जो फाइनली आप पे करते थे वो कैश लेजर में दिखेगा. ऑफ कोर्स अगेन CGST with CGST, SGST with SGST, IGST with IGST, interest with interest. Yes or no? Understood? And likewise it will proceed further also after adjustment. Then I have discussed there how you can make the payment. There was subsection, preference of payment in your section 49. Whether you should, and I told you, you need to pay first last year tax, then current year's tax, then fees, penalty, interest. Okay, so this is how you can discharge your liability. This is the mode and method through which you can discharge your liability under section 49 subsection 8. अभी लिखा है आपने, देखो चेक करो, आपके टेबल को चेक करो. सेक्शन 49 सबसेक्शन 8, मेथड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी, है ना? व्हाट टू बी पेड व्हेन. तो प्रीवियस था कि हमारे पास लायबिलिटी भी है, हमारे पास इंटरेस्ट भी है, हमारे पास करंट ईयर का भी टैक्स है, हम पे कैसे करेंगे? दिस इज द मोड एंड मेथड. हर एक पे क्वेश्चन है. ठीक है? अंडरस्टूड एवरीवन? Likewise, another question, how to compute the interest? Section 50. Okay, how much interest to be charged? What rate of interest to be charged? उस पे भी क्वेश्चन है. This I told you earlier also. What is the, even 5th semester we have seen. Yes or no? What is the due date of filing the returns? याद आ रहा है? If you will see your semester 5th का notebook, you will understand. Same table आपने लिखा है. Okay. If there is a composition scheme, then 18th of the next month, which is covered under section 39 subsection 2. If there is a TDS, then 10th of the following month. Okay. And again it is explained under section 39 subsection 3. If there is any NRI, then 20th of the each calendar year. 29/5. TCS has a 10th. Most of them they are falling under this section 39 subsection 1. And that's why by and large we used to consider 20th of the following month. Yes or no? याद आ रहा है? 20 तारीख is the due date for filing the return. देखो आप सेमेस्टर 5th के नोटबुक में आपको ये मिलेगा as it is table.
अभी भी मैंने इसको रेफर करा. ओके, देन दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूटेशन. कि ड्यू डेट तक आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा अगर आपने पे नहीं किया है तो. एंड इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा? सेक्शन 50 में दिया हुआ है. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? हाउ द टीडीएस टू बी चार्ज? सेक्शन 51. हाउ द TDS related question. How the TCS to be charged? Section 52. That related question. Okay. How you are filing the returns? DSTR1 कैसे फाइल करेंगे? And again due date is there. DSTR1 10th of the next month. DSTR2 15th of the next month. DSTR3 20th of the next month. Okay. And how your returns to be? Always it will be monthly returns. All GSTR is given. Followed with annual return. Okay. This is your portal. जीएसटी के वेबसाइट पे जाओगे तो ऐसा पोर्टल है जो हर चार्टर्ड अकाउंटेंट, हर बंदा जो फाइल रिटर्न करता है उसको देखना है. उसको ऐसे ही डिटेल भरने होते हैं. This is not part of your syllabus. Still I am teaching you. याद आया अभी? ऐसे ही मैंने नोटबुक में लिखाया था ना. अभी देखा था ना आपने क्वेश्चन. लायबिलिटी, कैश, क्रेडिट. याद आया? अभी जो पिछला क्वेश्चन आपने देखा, was it similar? Which was handwritten? Now this is not handwritten. This is computerized generated output. Of course इसमें दिख नहीं रहा है, वही चीज रहेगा. CGST, SGST, IGST, UTGST. Yes or no? Okay, electronic also it will be same. Then of course you need to first register. You have to fill all these details for registering on GST portal. सारी चीजें हैं. And this all you should learn. Okay. Which file you need to, which GSTR will be applicable to you? 1 or 3B or 4. Most of the time it is 3B. What is the return? GSTR1 कैसे return file करते हैं? And what will be your turnover? How this portal will be look up like? जब GSTR1 के लिए return filing होता है, how you can write the details on GST portal of Government of India. Okay, this I could not have shown you in your offline session. That's why I've used today's session online, so that I can show all these things which are available to me. Are you understanding the importance of today's session? Yes, students. तो अभी मैं जो टीच करूंगा आपको लगे हाँ सर वही चीज पढ़ाते हैं जो एक्चुअली प्रैक्टिकली यूज हो रहा है. Yes or no? Okay. Similarly for GSTR4 कैटेगरी है सबका अलग अलग. जैसे ITR का कैटेगरी था ना, आपने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था. Most of us we are falling under 3B. ठीक है.
18% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पहले ही बताया था, अगर नहीं लेट फीस वगैरह सब लिखा हुआ है। ये सारी चीजें हमने कहाँ रेफर करी? सेक्शन 59, सेक्शन 50, 49, सेक्शन 50, 51, 52, ये सारा चीज वापिस आता है when actually we are uploading my return to Government of India. Okay. Again, this is the real case study of someone whose GST has been filed. GST returns has been filed. Again, आपको वही सारी चीजें दिखेगी, दिख रहा है? वहां ये छिप गया था, है ना? हैंड रिटर्न भी यही सारी चीजें दिखी थी आपको। तो मैं ये क्यों दिखा रहा हूं आप लोगों को कि मैं जो थियोरेटिकली आपको रीड करा रहा हूं, प्रैक्टिकली ऑल्सो इट इज सेम, इलेक्ट्रॉनिकली ऑल्सो इट विल बी द सेम, ऑनलाइन ऑल्सो इट विल बी द सेम। लेजर एक्चुअली डेबिट क्रेडिट दिखेगा नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने डेबिट क्रेडिट सिखाया, बट प्रैक्टिकली इट विल बी इन वर्टिकल फॉर्म। इज दिस क्लियर? Again, you have to file the return, you have to take the period, सारी चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाई है हमने। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंथली रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, ऑल द डिटेल्स यू हैव टू फिल। कितना आईटीसी है, इज देयर एनी टैक्स, इज देयर एनी पेनल्टी, इज देयर एनी फीस, आर यू फॉलोइंग अंडर कंपोजिशन, सारा क्वेश्चन रहता है, एंड एवरीथिंग इज ऑनलाइन। Such a user-friendly portal. You really need not require anyone. Put up करो, कैसे आप टिकट बुकिंग करते हो, डिटेल देते हो, टिकट आता है कि नहीं, वैसा ही है। कुछ नहीं करना है आपको। कितना आउटवर्ड था, कितना अमाउंट होगा, कितना टैक्स रेट है, आ जाएगा सब कुछ, है ना? तो डिटेल लिखते जाना है। ठीक है। फाइनली इट विल गिव यू एंटायर थिंग कि आप कितने आउटपुट टैक्स के लिए लायबिलिटी बनती है, उसके अगेंस्ट में आपको एलिजिबल आईटीसी ऑटोमेटिकली है। ये तो हम पढ़ रहे हैं, बट द सॉफ्टवेयर इज सच, उसमें सब कुछ आ जाता है, टीसीएस कितना है, टीडीएस कितना है, सब आ जाता है। और ये भी बताता है कि एक्चुअली तुमको कितना पे करना है थ्रू कैश, पे कर दो। आफ्टर पेइंग आईटीसी, whatever the payment is required, that you can pay through credit card, debit card, या तो ई पेमेंट करो, एनईएफटी करो, यही सब सिखाया ना मैंने इनिशियली, एक्चुअली लास्ट में आएगा। ओके, समझ में आ रहा है सबको? ऑल वी हैव टू लर्न। फाइनली वही आया, भाई इतना था और इसको इतना टैक्स भरना पड़ा, रिटर्न फाइल, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। ये हो गया आपका रिटर्निंग। एक बार आपने फाइल कर दिया, इट कैन नॉट बी रिवर्स। ओके, so most of the SSC is falling under 3B, otherwise 3.1 and 4.1. I told you for refund and all this is theoretical. Again, we will be learning all subsections. Okay. Accounts and records 35. So I told you section 35 to 66 सब दिखेगा तुमको, but we will learn in step by step.
है ना, इन टेबुलर फॉर्म। These are the rules. Section 65. Audit. I told you those part is only theory. I mean, you have to learn these things. आपको याद रहना चाहिए. 66. So this your GST will be done. तो ये चीज हम लोग तकरीबन 1.5 months we will study, will learn. Okay, and then your GST syllabus will be over, which is there in your 3 modules of semester 6. समझा कितना अच्छा जर्नी था, वर्चुअल जर्नी। ये हम लोग, ये चीज हम लोग ऑफलाइन में नहीं कर सकते, इसलिए आज मैंने मौके का फायदा उठाया था और ऑनलाइन लर्निंग रखा था। अब मैं कभी भी पढ़ाऊंगा तो बच्चे को लगेगा सर जो पढ़ा रहे हैं वही चीज प्रैक्टिकली, अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, हम लोग कंप्यूट करेंगे, टैक्स ऐसा दिखेगा, यही था ना। ये चीज तो हम लोग थ्योरेटिकली हैंड रिटन कर रहे थे, आप वहाँ अमाउंट फीड करोगे ऑटोमेटिकली वही चीज आएगी। वो तो इनफैक्ट इससे भी इजी है, वो पूछता है और आपको खाली अमाउंट भरना है एंड यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है, दैट्स इट, वर्क इज डन। ओके, so today, as far as today's learning is concerned, only this much. Section I mean unit 1 में कितने सारे sections है, and section 49 in detail we will be going to learn this ledger again on Monday offline, और इससे related कुछ questions की भी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। Meanwhile I'll send you all the materials for your reference. ओके, मैं सारा चीज आज आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। कीप इट, बस जैसे जैसे मैं बोलते जाऊंगा वैसे वैसे आपको असाइनमेंट बुक एंड नोटबुक में लिखते रहना है, यस और नो। फिर क्वेश्चन देंगे, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा हमारे पास है। तो मैं प्रॉपर प्लानिंग करूंगा, अगर ऑनलाइन ऑफलाइन हो रहा है तो जिस दिन मुझे ऑफलाइन, एक्चुअली ये लेक्चर कैंसिल हो गया था इसके लिए, नहीं तो मेरा प्लानिंग परफेक्ट था, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्स का जो क्वेश्चन है ये अपने को करना है, इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन है वो अपने को करना है ना, है ना, सारी चीजें। फिर कस्टम जब भी पढ़ेंगे कस्टम रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड फॉर रेफरेंस of custom, I will not send you the material now. I will send you only the material till 3 units GST. एक बार GST खत्म हो जाएगा, then we will talk about custom act 1960. Is this clear? तो इंटरनल में अपना GST रहेगा और सेमेस्टर एंड में कस्टम दो दो यूनिट करके रहता है ना, आपको याद है ना। दिस इज हाउ आवर लर्निंग इज, ठीक है। I hope you must have enjoyed today's session. Thank you very much. So now we will even utilize optimally online and offline both. जो चीज मुझे ऑफलाइन पढ़ानी रहेगी मैं ऑफलाइन पढ़ा दूंगा, जो मैं ऑफलाइन में I'm unable to do it, then I will go for online mode और उसका भी इस्तेमाल करूंगा till I am getting opportunity। अब ये जीएसटी है, जीएसटी रिटर्न वाला था पीपीटी, मैं ऑफलाइन कैसे आपको दिखाता था, होता था क्या क्लास में? नहीं। अभी बच्चों ने सबने देख लिया, एटलीस्ट ये 22 स्टूडेंट्स ने देख लिया, ये तो एटलीस्ट दूसरों को बताया करे बाबा वैसा ही है, जैसा नो। अदरवाइज गो एंड वेरीफाई
Try to file a return of a dummy SSC. जिसका GSTN नंबर है फाइल करो, ऐसा ही आएगा सारा चीज जो अभी आपने स्टेप बाय स्टेप देखा ना। मेरा भी SSC क्या था, सेक्शन 3 GSTR 3B वाला था। बाकी दो के लिए मेरे पास SSC नहीं थे, इसलिए मैंने उसका डिटेल दिखा नहीं पाया, है ना। ओके, थैंक यू वेरी मच। See you then on Monday. I hope it was only one lecture today, है ना। मजा करो फिर, मजा नहीं लगे। Bye everyone, take care.